वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी रिक्वेस्ट हमसे की है संजय त्यागी ने, और उन्होंने हमें बोला था कि भाई लोग सेलिब्रिटी बन गए हो लेकिन अपने सब्सक्राइबर्स का हालचाल पूछ लिया करो। वेल हम लोग खुद को बिल्कुल भी सेलिब्रिटी नहीं समझते। हाँ, आप सब लोग कैसे हैं ये जरूर हमें बताएं। अभी बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है हाउ डज द हैंगिंग पिलर ऑफ इंडिया वर्क एंटी ग्रेविटी। तो चलिए पहले देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का, इस चैनल का विषय लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देखते हैं वीडियो। Hey guys, I'm at the Lepakshi temple in India and I'm going to show you not just the mystery of the hanging pillar but also show you exactly how it works. In this temple you can see many people doing the same thing. Put a piece of cloth underneath and slide it around the other side, proving that the pillar is disconnected from the floor. This is considered one of the wonders of India. How did ancient people construct a huge pillar that defies gravity and is hanging in midair? These kind of mysteries always interest me, so I decided to visit the temple. Right from the start, I'm fascinated by the carvings in the temple, like this cow, for example, which shows multiple postures in the same sculpture. But that's another video. So I end up at this hanging pillar, which attracts thousands of tourists every day. As you can see, this is a huge block of granite around 20 feet tall with brilliant carvings. Now, I just have to prove it to you that this pillar is disconnected from the floor. So I asked this elderly couple who have come with a towel. Watch how they slide the towel on one side and it goes all the way on the other side. This shows that ancient technology employed anti-gravity and levitation, because there is no way a 20-foot granite block which weighs many tons can hang in mid-air. So how does it actually work and attract thousands of visitors every day? It works because nobody is showing you the rest of the footage. We have dozens of videos of this hanging pillar on YouTube, but nobody shows you what happens next. Here's what happens. You can slide a piece of cloth through one end, but you cannot pull it out on the other end. If the pillar is completely disconnected from the floor, we should be able to pull the cloth on the other side. However, the cloth I slide is going to get stuck in one of the corners. The pillar is not really hanging in mid-air because one of the corners is clearly resting on the floor, which is how it still stands. Okay. If you examine this pillar closely, you can visually confirm this. The pillar does not employ anti-gravity or levitation. So, did the ancient people create an imperfect pillar? Well, it turns out that the British government decided to do some repairs during pre-independence era and attempted to remove the pillar. But they couldn't because it was fixed so perfectly they could only dislodge it. They realized that removing this pillar is impossible, so they left it in this weird position. That's the true story behind this dislodged pillar. However, there is a bigger mystery in this temple that needs to be decoded. Did giants leave a footprint in this temple? I hope you like this video. I'm Praveen Mohan. Thanks a lot for watching. Don't forget to subscribe. I'll talk to you soon. Bye. बात करेंगे आज की वीडियो की, तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ हूँ इस पिलर को देखे। बेशक हैंगिंग नहीं है, नीचे उसकी बेशक थोड़ी सी स्पॉट है, लेकिन अगर देखा जाए उस थोड़ी सी स्पॉट पे उस पिलर ने बहुत सारा वजन उठाया हुआ है। अच्छा, तुम ये देखो कि उस टाइम पर जिस तरीके से भी बना हुआ है और जो भी इसके पीछे मिथ है जो हम लोगों ने भी पढ़ी है वो डेफिनेटली हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जब तक आप नहीं सुनते और देखते इसके बारे में तो आपको थोड़ा लगता है कि वाकई में कितना डिफरेंट
कि ऊपर से इस तरह से बना हुआ है और नीचे उसकी कोई सपोर्ट नहीं ही नहीं बिल्कुल। हाँ, तो मतलब आपको काफी ज्यादा हैरान करने वाली ये चीज है। वैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, जो अगर टेम्पल की दीवारों की बात करें तो अगर उसके नक्श निगारी की बात करें, जिस तरह उस पे जो है जो उन्होंने दिखाया कि जो गाय बनी हुई है उसके 3 जो है मुंह उसके बनाए हुए थे डिफरेंट डायरेक्शंस की। तो अगर पुराने वक्तों के लोगों की बात करें ना, तो हम लोग कहते हैं कि यार उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, लेकिन फिर भी हम अब यही महसूस होता है कि बेशक उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, फिर भी वो हमसे कई 100 साल आगे थे जिस तरह उन्होंने चीजें बनाई हुई हैं। अगर हम इस जगह की बात करें जो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो इसके बारे में कई मिथ्स हैं, लेकिन जो हमने एक पढ़ी है, 2 पढ़ी हैं, उसमें एक ये थी जो ब्रिटिश इंजीनियर थे, उन्होंने क्या किया था कि इस पिलर को यहाँ से हटाने की कोशिश की थी। तो जब उन्होंने इसे हटाने की कोशिश की तो वो एक पिलर की वजह से बाकी 10 पिलर जो थे वो भी अपना बैलेंस खो रहे थे, और जो है जिसकी वजह से वो नहीं हटा पाए। और दूसरा ये जो है पिलर इस तरह जो है इनको बनाया गया है, इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर अर्थ को एक भूकंप भी आता है तो ये उसे रेजिस्ट कर सकते हैं। और जो दूसरी मिथ थी इसके बारे में वो भी ये थी कि जो ब्रिटिश इरा में जब उन लोगों ने इस पिलर को रिमूव करने की कोशिश की तो वो उनसे नहीं हो सका, क्योंकि ये इतना परफेक्टली फिक्स था वहां पर कि उनको लगा कि अगर इसको रिमूव कर दिया गया तो बाकी भी जितने भी हैं वो पिलर्स में नुकसान होगा, उनको भी नुकसान होगा। तो मतलब वो उनके लिए इम्पॉसिबल था, इसलिए फिर उन्होंने वो काम वहां पर छोड़ दिया। और देखा जाए अभी जैसे वीडियो में भी खैर उन्होंने भी ये एक्सप्लेन की है चीज। और इसके अलावा इसके टेम्पल के बाहर एक आई थिंक स्ट्रीम है और एक बिग स्टोन विद जायंट फुटप्रिंट, जो कि हमने वीडियो के लास्ट में भी देखा, वो भी हमें देखा। बाकी में मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी वो भी जानने के लिए कि वो क्या है। वैसे इस तरह की जब आप चीजें देखते हैं ना, यानी कि जो फुटप्रिंट्स जो है पुराने होते हैं, आप वाकई एकदम उस ख्यालों में चले जाते हैं जो आपने कभी जिंदगी में सोचे नहीं होंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े पैरों के निशान अगर हैं तो वो लोग भी कितने लंबे होंगे। नहीं, ये सोचते पता नहीं, मेरे जहन में तो ये सोच आती है कि इतने बड़े पैरों के निशान अगर हैं तो किसके हैं। और ये जो टेम्पल है ये वीरभद्र टेम्पल है, वीरभद्रा या वीरभद्र टेम्पल है जो कि लिपक्षी गांव में है। और लिपक्षी जो सा है वो गांव जो सा है वो जतायु बर्ड, जो कि हम कैसे भूल सकते हैं, बिल्कुल सही बताया हमने, उस जो है स्टैचू देखा था। बिल्कुल हाँ जी, उनके नाम पर रखा गया है। और जब रावण ने सीता जी का अपहरण किया था तो जटायु बर्ड ने ही लॉर्ड रामा को बताया था, और मतलब वो काफी ज्यादा जख्मी भी हो गए थे और उन्होंने सीता जी को बचाने की काफी ज्यादा कोशिश की थी, क्योंकि वो खुद भी बहुत ज्यादा मतलब वो एक ओल्ड बर्ड था, तो इस वजह से, और रावण बहुत ज्यादा ताकतवर भी थे। तो लॉर्ड रामा ने फिर उस टाइम पर कमांड दी द बर्ड टू राइज, मतलब पक्षी जिसको बोला जाता है राइज बर्ड, तो उस नाम पर फिर इस विलेज का नाम रखा गया। बिल्कुल। और अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो है इंडियन स्टेट आंध्र प्रदेश में जो है ये मंदिर है, और ये 16वीं सदी में बनाया गया था। और वैसे हम जितनी भी ऐसी वीडियोस देख रहे हैं जो मंदिर से रिलेटेड, मौसम एक चीज नोट की है कि हर मंदिर में कुछ ना कुछ आपको मतलब जैसे कार्विंग दिखने को मिलती है, डिफरेंट आपको एक मैसेज दिया जाता है। देखिए ना, वही वाली बात आ गई है, पुराने वक्तों में जो है जो चीजें बनी हुई है तो उन्हें जब हम देखते हैं ना तो हमारे ऊपर जो है ना एक वो उस तरह का इम्पैक्ट आ जाता है कि यार उस वक्त में ये कैसे जो है उन लोगों ने बनाई होंगी। क्योंकि अगर अभी हम देखें ना तो अभी तो हम सिर्फ चीजों को उनको मेंटेन करते हैं, यानी कि उससे जो है हम इस तरह करते हैं कि कम से कम जो है इसे नुकसान पहुंच सके। जितनी भी पुरानी अगर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की बात कर लें, मंदिरों की बात कर लें, मस्जिदों की बात कर लें, चर्चिस की बात कर लें, उन्हें सिर्फ मेंटेन किया जाता है। लेकिन जब उनकी बनावट को देखा जाए ना तो एकदम आपका जो दिमाग है ना वो जो है ब्लॉक होना शुरू हो जाता है कि यार कैसे उन लोगों ने इतनी जो है टेक्नोलॉजी के बगैर, जो आजकल हम देखते हैं क्योंकि हमारे लिए तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है ना, उसके बगैर कैसे उन्होंने एक एक इंच जो है इतना परफेक्ट रखा है। और मैंने यहाँ तक सुना हुआ है कि जो मॉडर्न साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो इन चीजों को इसलिए कंप्लीटली एक्नॉलेज
एक्नॉलेज नहीं करते, क्योंकि फिर वो चीजें आ जाती है ना कि एक तो इंडिया से बिलोंग कर रही है चीजें, तो फिर वो कैसे आप कर लेंगे, वहां से इतनी देर पहले से इनोवेशन जो सी है वो आपको मतलब मिलना शुरू होगी, तो फिर वो आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं एक चीज बोलती हूँ कि समटाइम्स मेरा दिल करता है, जब मैं वीडियोस देखती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं पुराने टाइम में वापस जाऊं और मैं देखूं कि वहां पर लोग क्या करते थे और कैसे होता था सब। सीरियसली एक क्यूरियोसिटी होती है, वो जैसे कहते हैं ना टाइम मशीन वो वाली। अगर टाइम मशीन बन गई ना तो खाली आप नहीं, दुनिया के बहुत सारे लोग पुराने वक्त में जाना चाहेंगे, अपने पसंद के टाइम में जाना चाहेंगे। वेल ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। एक लिहाज से मुझे इसलिए भी बहुत अच्छी लगी क्योंकि बहुत सारे लोग जो उनसे हैं वो इसको लेकर फिर मतलब इस तरह की चीजों को लेकर काफी सारी स्टोरीज बनाना शुरू कर देते हैं, जो उनके पीछे की स्टोरी होती है वो एक्चुअल में लोगों को नहीं पता होता। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरीके से उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया और जो इसके पीछे मिथ्स हैं उसको भी बताया, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की जो गलतफहमी है वो भी दूर हो जाएगी। वेल ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आप क्या इसके बारे में जानते हैं आप जरूर हमें बताइएगा, और इसी के साथ हमारी वीडियोस को लाइक, हमारे चैनल सब्सक्राइब, वीडियोस को शेयर एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन गुड बाय।